give his opening remarks. Thank you, Sumit. Good evening, everyone. Good evening, Vandana ji. Good evening. Happy to see everyone joining on a weekday, working day evening to keep ourselves updated and to keep ourselves relevant. Right? So, like every Friday that we have had since February, or rather end of January, today also amongst us we have a very, very sought after speaker, evangelist on AI and Tally. So hopefully we'll have some interesting things to learn and which we can implement in our day-to-day activities. And which Sumit has already mentioned, and someone is also asking for a link on YouTube. The channel link on YouTube, we will share that. But I think a sincere request with all the participants would be not just for today's session, but also for earlier sessions. Now, I think at least have one or two takeaways, something that you can implement from Monday itself. It's not necessary. Ma'am, of course, will show us tons of things and we may get involved with it, but we may not end up implementing it. So if you don't implement it, all of these sessions mean nothing. At least have one or two takeaways, which we should have, something that we can implement from Monday itself. I think if we are able to do it, then the series and all the effort which all the speakers, including ma'am, has put in, will actually lead to some kind of fruition. So with that, welcome everyone again, and passing it back to Sumit to take it forward. Thank you. Thank you, Rahul Bhaiya. So today we are having a session on importing or creating Excel templates so that we can import data from Excel to Tally. At the same time, ma'am would be showing how we can, create dashboards or create MIS reports with Tally. I'll briefly, she has a list of accolades in her name. So I'll not, I'll do justice with the time and I'll briefly introduce her, and the rest of her profile is being shown on the screen for your reference. So Vandana ji has over 37 years of experience in accounts, audit, finance, and consultancy. She is committed to ongoing learning and she has taken several sessions on Tally. At the same time, she had certain accolades, like she has received a Star Woman of the Year Award 2024, and she has keen interest in Tally. As we were even speaking about the sessions, he said that she's creating templates. So she keeps a lot. She believes in automation, and she has created multiple templates related to Tally. Apart from this, the her profile is being displayed, and she's an active or regular speaker at WIFC. Her profile is displayed on the screen for all of you to refer. And what is more interesting, that she's have even delivered 300 plus lectures and workshop across India, including various study circles and branches of WIRC, ICI, trade associations. So we hope that this would be 301 plus kind of a session. And with this, I request her ma'am to take the session from here and enlighten us so that we can the tax season is approaching, how we can automate or how we can ease our work with respect to her Excel template demonstrations, and we can start using it from Monday, as Rahul has mentioned. And why Monday? Because in Calcutta we even work on Saturdays, so in case you want, probably you can start using it from Saturday. So over to you, ma'am, for your deliberation. Thank you. Thank you very much, VIP Study CA Association, right? VIP Road. And thanks to Sumit personally and Rahulji for acknowledging what I like from Rahul's conversation was very important. We learn, we keep learning, but how much we implement, that will decide our growth. So very important aspect what he said is that we need to implement the moment we learn something. And I know Sumit is doing, and with the full team is doing a justice. Sharing the knowledge is what we are looking at. Hope I can also add some valuation from my day-to-day practice. So today, once the 31st March 25 has come, closed, I was thinking how to address the 26 AS issue. So let me first start with 26 AS. I have just downloaded one of my clients' 26 AS and I've just renamed the same. Now there will be possible
certain scenarios. You have to understand first. The viewers will accept with me that the 26As has the challenge. First of all, you may have entered the transaction while entering the receipt entry for that. For example, I'll give you an example. When you nowadays dividend also TDS has been deducted. So while parking the entry in your books of accounts, if you have passing the entry with TDS, that will be a challenge. So you have to clean the data from 26As, matching with what right now existing in your 26A, in your tally books of accounts. If luckily throughout the year no one has entered any TDS, I think it's a blank slate will help you to do better job when you want to actually carry out the operations. So that is first thing. Second will be certain times you have a FDs in the bank or some companies, and they just have a cumulative benefit, but still they deduct the TDS. At that time, what will happen? The entry of accrued interest, you need to debit TDS, you need to debit and credit the income. So there also, bank will not come into picture. Only you need to pass one full TDS entry, accumulation, debit to the FD account, or as the case may be, whatever practice you are following in the books of account. That is one. Third will be that the way I said dividend is coming, or a commission for that matter, or any professional fees as a chartered accountant we are receiving, and we have only accounted for the net entry. In the possible these 2-3 scenarios, let me, and how many of you have already worked on a template? मतलब creation किया है, कभी देखा है, कभी सुना है. So that means you will understand better. And if very less people have done, तो मैं थोड़ा रो लेवल से भी बताना चाहूंगी. बात की है ना वो एक मिनट रुकिए. अरुण जी को म्यूट ठीक है. So now I will, and another thing I want to tell you all is whenever we are working for the client, हमारे हर client same release of tally में होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं. There is no necessity. So ideally I suggest my viewers or the audience that you keep all kind of tally data, tally icons, 2.1, 4.1, edit log, and now that icon is changing, Tally Prime 6.0 coming, launch is on 9th of April, but they have already download version is available, EXE is available, and as we today, so we are in a updated era, so we have to be first one to do the work. You should be first in the race so that you can maximum optimum utilization of the available resources you can do. So 6.0 I have upgraded to 6.0. The logo has been changed now. And if I have I can show you is that here Tally Prime Gold is mentioned. Otherwise it was coming underneath. Gold was coming below the Tally Prime. That is the difference. And the icon has changed. Our icon was Tally Prime with 3 different colors, now which has become Prime, and this is Tally. Okay, that is one correction. One amendment has come. Now, why I started like this is that suppose I have created data, suppose TDS templates. I will go here and now navigation is possible. Control C on the browser. Just go to Tally and Alt F3, and I will press specified path and I will paste the data. So moment you paste the data which is of a lower version, Tally will give you the signal migration required. So this is what I wanted, anyone who is watching this video later on also helpful, that it is not necessary the same version will be there. So if I'm going to work at my place, I need to migrate it, or I have to use the earlier version, desktop version, which I have shown you. You need to understand from the client which version they are working with. I personally, as a chartered accountant, like to tell that you need to upgrade the client, educate them, कि come with the latest version, क्योंकि जैसे ही iPhone का या Android का नया version आता है, we upgrade our mobiles, we also upgrade our systems. So same way, Tally Prime की जब नया version आता है, it is advisable you also educate your client to upgrade their versions so that they can take benefit of the subscription paid to the Tally and the whatever new release they are coming with, whatever bugs are fixed,
whatever new things are brought in, new characteristic, new features, so that we can take benefit of it. So let me just migrate it. Now it asks me whether you want to take a backup. I don't require the backup. So I will say no. I will say Control A, and then I will migrate the data. So this is one methodology I wanted to teach you. Okay? What is the difference between the data when you receive? You need to take certain steps. So migration is now very fine-tuned. I have changed the name of the client just for the sake of limitation of the rare information we are sharing on a public media. Now I go to say 26As comes in this format. So here when we go, TDS detail. This is how the file will be coming to you, correct? And TDS detail, what I suggest is that to my staff also, can just press this and make one particular formula so that you can have a proper detailed answer columns ready. So now this is 26As. यहाँ पे आप you can do in this, but we have made a template. So the way I said, you need to make a Excel file based on what you want to post. So only TDS entry, then this is the template I have created, and full entry. Here in this case, client is receiving commission from that particular 26S. If we go through 194H, section is 194H. So commission and brokerage. So this is one first example where everything will be like debit to client, to from whom you are going to receive the commission, TDS account debit, and to your commission income. So this is what that is the use case, what we want to do. So I hope you are all with me, till now. And then this was created. Now there is a challenge is that your account may be not having one journal entry, there will be n number of entries. So ideally, agar aapko numbering ko you want to take care, you can open a new TDS journal voucher type. That what I have done here in TDS journal voucher type. So you can have a separate series so that whatever TDS entry you will be fetching from 26As. Now suppose we are filing ID return of some clients, पूरे साल में एक ही बार उनका data आता है. So then there is no problem. You can go with the serial number per se. You can do it. And yesterday only, Excel knowledge is also important because Excel cleaning of data is very, very crucial. So I had learned this yesterday only from one of my Excel friend के कंट्रोल एच फाइंड करके उसने डैश रिप्लेस किया, फिर मैंने यहाँ पे उसको सॉर्टिंग किया है डेट को. Prior to that, I have already set these numbers. So this is I will now doing for the first time. So I can just make it 2 and I can drag it. So मैंने sorting जो करके रखा था. So this is my journal numbers I will be putting. These are my clients. These are my dates. So whatever I am doing is that 26As में से हमने यहाँ पे डेटा पेस्ट किया है. फिर आपको ट्रांजैक्शन डेट को फॉर्मेटिंग करने के टाइम पे कंट्रोल फाइंड करके डैश को, ये जो डैश होती है, आपको ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है. कंट्रोल फाइंड करके डैश होती है, उसको रिप्लेस किया था हमने विथ अनदर डैश. So that it will term it as a, and you should take it as a accounting voucher. यहाँ पे पहले टेक्स्ट आता है. जब आप 26A से पेस्ट करोगे ना तो फॉर्मेट विल बी टेक्स्ट. So थोड़ा सा एक्सेल नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हाइल यू वांट टू क्रिएट अ टेम्पलेट. पहले आपका एक बार होमवर्क हो गया, डेटा रेडी हो गया. यहाँ पे 20,000 19,000 मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो वहां पे सेट किया था वो यहाँ पे आ गया. So now we know these are the 3 figures which I want to import in Tally. Now I go to Tally. Alt O is the function. Alt O is for import function. Then there is something called manage mapping templates. In mapping templates, I want to create, but I have already created. So now I will alter that template for you. So full entry TDS is what I have given the name. Now I have to specify the path, which particular file I want to import. So again, I will go here and specify the path TDS template where I have kept the file.
टैली में ब्यूटी ये है कि फाइल इज ओपन, स्टिल यू कैन वर्क ऑन दैट फाइल फॉर importing, but it will work until whatever you have saved, and then you start working on it. So that much transaction or that much details only it will fetch. So you need to be very careful before starting the template. Please save the file so that whatever you want to pull the data, it will be easy. So here is the template, how it works. First of all, it is for say all companies. I am doing this. Then मैंने नाम दे दिया. This is typing. आप जो नाम आपका देना है आप दे सकते हो. So full entry TDS. Then accounting vouchers I have taken. Here it asks me another question. Excel data has a column headers. So अगर हमारा Excel में यहाँ पे heading है voucher type, voucher number, so our Excel contains the header. That's what we need to inform to the tally. Now, no row number of column headers, it is lying in first row. तो कभी कभी क्लाइंट का कोई डेटा आया है, वो अगर उसका डेटा में 6th रो में है, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन 6th रो में हेडर है करके. So this flexibility is available to you. After that, which row you want to import. So suppose same template में अभी मेरे पास अप्रैल से दिसंबर तक का ही 26 एस है. Once the 31st May, everybody will upload their TDS return. By 7th June, I will be able to download the 26 AS. मतलब मोटा मोटा final TDS, what one can understand. So at that time, what I have to do is that अगर मैंने अभी जब मैं काम कर रही हूँ, so अगर मैंने row number 21 तक काम कर लिया है, so I can inform the tally in the same template कि kindly import the data from 22nd row. So that flexibility is also available. So in one training only, I'm teaching you how you should understand if this field is given for you at later on in the same file you are pasting certain data. So you can fetch the data from the same file. Okay. So that flexibility is there. Right now I will write second row to the blank end. Blank मतलब end तक लेना है. यहाँ पे I don't want to define anything. So it will pick up from the start to end. So voucher type, यहाँ पे अभी आपको देखो, यहाँ पे ऐसा पूरा उन्होंने लिस्ट दिया है. The tally has given you the list from which you have to pick up. So mandatory जो लिखा है, that is important. You need to understand that you need to answer has to be provided. Otherwise, your Excel to tally import will not function. So I have just given voucher type name. So voucher type is the column heading which I have to pick up. You can also pick up like column A, column B. That is also fine. But if there is a header, I suggest you pick up the header. So it becomes easier to understand. So journal, I have mentioned there. So voucher type. Yeah, you can also specify the fixed value. और यहाँ से आप journal ऐसे भी कर सकते हो. But it has to be very specific. कि आप क्या लेना चाहते हो. So जरूरी नहीं है अभी वहां से भी उठा सकते हो या specify fixed value भी कर सकते हो. We have voucher type mentioned there, so I will take it from there. Voucher date will be the transaction date. You understand when you want to park the TDS entry. So that is transaction date. You understand this is the transaction date column which contains the dates. Then voucher number. So I have already numbered it. Number करना बहुत जरूरी है. अगर same date में कुछ transaction रहेगा तो tally will combine it and post it. So if you don't put number, though the number field is not mandatory, but I tell you that it is mandatory. Basically, that is my tips to anyone who is listening to this video. That voucher number is a mandatory for us. If you don't specify, then on the same date, if there are 2-3 transactions, tally may club it. This specifically happens with the bank statement where you want to import. This kind of errors are coming. So it is my humble request and advice. Please put the voucher number column also so that you will fetch. Then is voucher narration. You can have something यहाँ पे narration में anything like from 26 says अगर if you want to type a specific narration, so you can write specified fixed value from 26 as I have imported. So from 26 as I can write my narration. So this is a fixed narration you can write. फिर मेरे पास source क्या है from where I have been preparing this. Then I have to put a ledger name which is TDS. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है इसलिए TDS ऊपर आ गया, नहीं तो हम पहले तो पार्टी का नाम डिफाइन करते हैं. So let us first understand ledger name. I will create in front of you कि मुझे तो name of the deductor को ही डेबिट करना है. So अगर आपके पास टैली में ओपन है मतलब क्रिएटेड लेजर है तो टैली will import the voucher. If not, tally will put it to the exception
and Tally will allow you to create the ledger. That is also available in Tally's template. So that is a good thing. So suppose name of the deductor, I will have to write here name of the deductor. Then there is a ledger amount. I will have to pick up, say what I want to put to the person who has deducted. So after the net amount, see the amount which will be debited to the client from who has deducted the tax. So that will be the net amount. So which is the column amount paid credited, total amount paid deducted, which we have put the formula. So total amount column I will put there. Then you have to specify ledger amount debit credit. See here from the window we are selecting ledger amount debit credit and specify fixed value. So the client from whom I have to receive, so I will have a debit. After that, so ideally, agar it is the first thing, so it will go under the top ledgers. So that's what I missed out. So here I should have started with top ledger. तो टैली को यू हैव टू इन्फॉर्म कि मेरा सबसे पहला लेजर क्या होना चाहिए. सो टॉप लेजर आई हैव टू सिलेक्ट top ledgers and then you put the ledger name. Ledger name will be the name of the deductor. Then I put the ledger amount. This is ledger amount is total amount paid, and then ledger amount debit or credit, which was specified fixed value was debit. And then I will put end of list क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया तो मैंने स्पेस बार मार के एंड ऑफ लिस्ट किया. स्पेस बार मार के इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट करूंगी. नाउ I want another multi ledger, so I can write TDS account also in top ledger. So that also I can do. So again I will go here ledger name. यहाँ पे मुझे क्या चाहिए जिसको मुझे डेबिट करना है. So I will have a specified fixed value. So I will pick up from this TDS for AY. So if it is not generated for 25-26, the ledger has not been generated, I can just press Alt G and then create master and the ledger, and I will create say TDS for AY 25-26 क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है और उस क्लाइंट का साल में पहली बार आप एंट्री कर रहे हो. So just create a ledger. So I have created the ledger without from template. I have to just do it. So that one more feature I have taught you. Alt G is a beautiful function. I was creating a template. I don't need to do escape or I don't need to create a open a new tally for just creating one ledger. That flexibility is now here. So TDS 25-26 we will fetch. Okay, I want this ledger to be debited. What should be the amount? So it should be tax deducted and then specify fixed value will be debit. So two debits I have done. Now bottom ledger will be ledger name. तो इनकम नेम तो हमें पता ही है कि कमीशन इनकम है, आपका डिविडेंड इनकम होगा, प्रोफेशनल फीस होगा. जो लेजर आपने टैली में क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे टाइप करके रखना है ये टेम्पलेट के अंदर. सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ठीक है. सो इनकम लेजर टू बी क्रिएटेड. लेजर नेम विल बी व्हाट विल बी माय नेम. सो मैंने वहां कमीशन इनकम हाथ से डाला है. मैंने क्यों डाला है क्योंकि आपका 26 ईयर्स में खाली एच नहीं रहेगा. इट कैन बी एच whatever 5-6 लाइन आइटम कॉन्ट्रैक्ट जो भी फीस रिसीव हो रही होगी, डिविडेंड आया होगा, तो आप वहीं पे कर दोगे तो इजी होगा. स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू भी मैं यूज कर सकती थी, इसका तो खाली कमीशन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो whenever there are more than one item you have to specify in this. यहाँ पे कमीशन की जगह पे मेरे को प्रोफेशनल फीस भी लिखना है तो दैट आइटम विल बी पोस्टेड टू प्रोफेशनल फीस. सो टैली विल पिक अप फ्रॉम दैट. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आपको चाहिए तो हम एक दो आइटम को प्रोफेशनल फीस में भी डाल सकते हैं. सो मैंने इसलिए हेडिंग को यहाँ से सिलेक्ट किया है. इनकम टू बी क्रिएटेड, लेजर अमाउंट विल बी व्हाट. So it will be the gross amount. So transaction amount paid credited will be picked up. So that I have to specify. Ledger amount debit or credit. Obviously now income is there. It will be credited. So that is end of list. Then again end of list. And then voucher type name. And then I have saved. So my template is saved. So till this, any query? Anyone has any doubt? Vandana ji, there's one query of Jagdish ji. He says if same voucher number is already in tally for a particular date, how will it take? तो मुझे वही समझना पड़ेगा कि वो देखो मैं इसीलिए वहां पे नंबर तो हमने डाले ना, इसीलिए हाथ से डालना है. आपको खुद को पहले से टैली में जाके आप देख के आओगे कि लास्ट नंबर कौन सा था.
या फिर आप अगर इंपोर्ट एक साथ सारा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप फिर एक नया सीरियल बना के इंपोर्ट कर सकते हैं, ये जो हाँ, आपने दैट इज द एडवाइस। मतलब मैंने तो वाउचर टाइप ही चेंज कर दिया। अभी समझो कि इनका क्वेश्चन जो आया है वो कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं DSS करूंगी। टू बिफोर इंपोर्टिंग एनी डेटा, आई विल गो एंड चेक हियर इन जर्नल, इज देयर एनी ट्रांजैक्शन अवेलेबल। सो हैड देयर वर 10 ट्रांजैक्शन, आई वुड हैव स्टार्टेड माय नंबर फ्रॉम 11। मैं यहाँ जाके एक्सेल में 11 नंबर से कर देती हूँ। दैट इज द बेस्ट वे टू डू। बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी के पास और कुछ है, जैसे ऐसे एक नया वाउचर सीरीज ही स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्पेशली TDS के लिए ये काम कर रहे हैं। सो दैट कैन रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन मेरा भी था कि जैसे आप फुल एंट्री में जो आपने कमीशन दिखाया है, तो इफ हम्म यू हैव मल्टीपल लेजर्स इन, इफ द लेजर इज नॉट इन टैली, तो भी वो देन मुझे एंट्री इंपोर्ट कर देगा और वो वहां पे खड़ा रहेगा कि यू क्रिएट दैट लेजर। okay, okay, okay. So सो even Sushma ji and Gaurav Goenka ji have questions. So you have power to unmute. If you can, if you want, you can unmute yourself and ask, or else I'll read the question. हाँ, So तो Gaurav bhai, you can unmute yourself. Sushma ji, you can unmute yourself and ask the question. डिस्प्ले हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, 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 bhaiya, yes. अपने जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें नरेशन इंपोर्ट करने का ऑप्शन है क्या? है ना। अगर अगर आपको नरेशन में क्या लिखना है, यहाँ से जो कॉलम है होगी वो आप डिफाइन करो। या तो मैंने स्पेसिफाई किया, देखो आई गो बैक टू द टेम्पलेट, सी मैनेज में मैं जाऊंगी। हम लोग ये टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, बट इसमें ये जो इसका बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में तो कोई नरेशन का ऑप्शन नहीं दिखता है। है ना सर, आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको। आप देखिए, यहाँ पे जब आप जाते हो, यहाँ तक हम पहुंच गए ट्रांजैक्शन डेट के बाद। आप यहाँ पे देखिए, वाउचर टाइप नेम वाउचर डेट के नीचे ही वाउचर नंबर है। अब आपका टैली अभी चालू करके देखना चाहते हो तो भी देख लेना कि वहां पे होता ही है। दैट हैज टू बी देयर। और वो तो जनरल डिटेल्स है। नरेशन बोल रहा हूँ, नरेशन वाउचर नंबर नहीं। वाउचर का नरेशन शायद उसके बाद है क्या, रेफरेंस और डेट के बाद नीचे ना, लिखा है? रेफरेंस नंबर के नीचे। अब ये रेफरेंस नंबर कब यूज होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है ना, तभी ये रेफरेंस नंबर डालने का। इससे वो रेफरेंस नंबर सप्लायर में ले लेगा। मैं परचेस भी 5 मिनट में अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद परचेस का भी मैंने लेकिन बनाया। ये जो टैली का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसमें शायद ये ऑप्शन नहीं है। हम लोग तो डिफॉल्ट टेम्पलेट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रखे हैं और उसमें हम लोग डेटा हाँ, डाल के बट input करते हैं। मैं समझ गई, इसीलिए ये सेशन रखा है सुमित ने, कि हमें डिफॉल्ट में नहीं जाके हम खुद की एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। Correct. So, sorry to interrupt, Vanda ji. So हम्म there are two questions. One is with related to purchase sales, and second is with related to share import. But before you do so, or if in case time permits, but ये डिफॉल्ट टेम्पलेट से आप अपना टेम्पलेट कैसे बनाना चाहते हैं, ये प्लीज आप सबको बताइएगा, सो दैट जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट हो उसको कर पाए। मैंने इसीलिए तो देखो ना आपके सामने, देखो ये हमारा खुद का टेम्पलेट है ना। हमने देखो ये एक्सेल फाइल तो अपनी खुद की है, हमने यहाँ जर्नल खुद ने टाइप किया है। आपका 26 तो देखो ऐसे आया है ना, ये देखो इस फॉर्मेट में आया था, तो मैंने यहाँ से उठा के उसको वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया मेरे एक्सेल में। तो आप, अगर मैं सही समझा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप, मैं मतलब आई कैन मेक माई ओन एक्सेल फाइल एंड देन आई कैन लिंक दी फील्ड्स। हाँ, वही तो मैं सिखाने के लिए आज आई हूँ। वही तो सीखना चाह रहे हैं मैम। सो द क्वेश्चन वाज दैट कि हम हमारी कोई भी फाइल है उसको हम बना सकते हैं टेम्पलेट खुद का, खुद क्रिएट। तो मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे रही हूँ, मतलब मैं बोलते ना मच्छी कैसे पकड़ना है वो सिखा रहा हूँ। फिर तो स्काई इज द लिमिट, जितना आपका दिमाग वैसे आप काम कर सकते हो वैसे। तो कोई भी फाइल होगी एक्सेल की, उसमें से लॉजिक समझो कि टैली क्या चाहता है कि तुम्हें क्या उठाना है। तो वाउचर टाइप नेम, तो आपको वहां पे वाउचर टाइप होनी चाहिए। नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी बताया कि आप यहाँ से टैली को क्या बोलना चाहते हो, सेल्स में डालना है या परचेस में डालना है, तो आप स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू यहाँ पे कर सकते हो कि मुझे जर्नल चाहिए ऐसा। तो आई कैन टेक दिस ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि मैंने अलग से कुछ नहीं किया है। तो आई कैन जस्ट ब्रिंग इट एज अ जर्नल। तो यहाँ तक हो गया है। अभी हम हमको उनको, बस एक एक सॉरी, एक हाँ क्वेश्चन और, कि बोलना। अगर मेरे को फील्ड जो लेफ्ट साइड में फील्ड टैली प्राइम, तो हाँ इसमें इफ आई वांट टू ऐड सम फील्ड, इज इट पॉसिबल? सुनो, जो फील्ड टैली खुद देती है ना उतने आपको मिलेंगे, उसके अलावा के लिए कस्टमाइज। ओके, ओके। करेक्ट। सो दैट इज हाउ इट विल बी। सो राइट नाउ, तो इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसमें कुछ डाउट है क्या? मेरा क्वेश्चन वही था कि आपको लॉजिक समझना है कि आप क्या डालना चाहते हो। तो पहले हमने एंट्री को समझा कि आई वांट टू डेबिट दी पार्टी अकाउंट, डेबिट दी TDS अकाउंट एंड क्रेडिट द इनकम अकाउंट। ये मोटा मोटा सीधा अपना एक काम चल रहा था, वो हम कर रहे हैं बराबर। और उसके अलावा
मैं और एक भी बता दूंगी, थोड़ा 5 मिनट देना मेरे को, मैं फटाफट आपको दूसरा भी है जो ओनली टीडीएस वाला भी 2 मिनट में, वो तो जब मैं 3 कर सकता हूँ तो 2 करने को क्या है, मेरे को एक डेबिट बोलना और एक क्रेडिट बोलना है टैली को, सिंपल। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका हमने बैंक लिख दिया है ऑलरेडी, और वहां टीडीएस का ही एंट्री करना है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये वेदर वो लेके आता है कि नहीं, और जो हम लोग सोच रहे थे कमीशन इनकम के अलावा कुछ आता है कि नहीं, पहले एक बार एक सेव करते हैं और ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। मैं तो अभी दिखाने के लिए वो गई थी कि डीएसएस में जर्नल कुछ है ही नहीं, बराबर है ना, जर्नल इज 0। सो लेट्स नाउ प्रेस ओ एंड ट्रांजैक्शन, बराबर। ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे वो फाइल पाथ पूछ रहा है, तो अगर नहीं पता है तो फिर से स्पेसिफाई बात करके आप लिख सकते हो। अभी तो हमको दिख ही रहा है कि हम एबीसी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना है देखो। अभी हम फुल एंट्री करेंगे, और फुल एंट्री टीडीएस हमारा टेम्पलेट का नाम है। आप देख सकते हो इतने सारे टेम्पलेट मैंने बनाया है, अलग 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 बैठ के आरएनडी करते रहने का। तो फुल एंट्री टीडीएस, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, यस, बैकअप नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो देखो जर्नल में मेरे को 20 लाइन आइटम्स दिखा रहा है। सो वी कैन जस्ट गो एंड चेक, देखो हमारा 20 नंबर है, तो वो इतना तक तो अपनी नैया पार लगी, आगे इंपोर्ट करके देखते हैं। अभी एक्सेप्शन आया। सो एक्सेप्शन में क्या मैंने गलती की है वो मुझे पूछ बताएगा कि तुमने क्या गलती की है। सो बून मेटल उसके पास है ही नहीं, ये मेरे को, मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है। क्या होता है टैली में, वो ना वो स्पेस या वो कुछ आ जाता है तो वो समझ नहीं पाता है, इसकी वजह से ये सब इश्यूज आते हैं। तो जब आप ऐसा रिसर्च कर रहे हो और ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, डोंट वरी, जस्ट गो हियर। पहले अपन 7 नाम दे, बून, देवांग, लक्ष्मी बाई, जो भी है सब में प्रॉब्लम ही है उसको, चलिए। तो यहाँ जाके कंट्रोल स्पेस बार करो और उसको डिलीट कर दो। ये मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी बैठ के खुद करना चाहेगा उसको ये सब चैलेंजेस आएगी, तो डरना नहीं है, उसको वहां से खाली हटा देना है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो अभी वापस कोरी सिलेक्ट हो गई, ये हो गया। और देखो वो जर्नल में उसके अलावा जितना उसको मिला वो लेके चला गया, जो उसको मिला। तो अभी जर्नल आप देख सकते हो कि साजन अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, टू कमीशन इनकम, वो लेके आ गया। जिस क्लाइंट का नाम उसको वो हैश हैश आया था, वो लेके नहीं आया। और उसने मुझे अलाउ भी किया कि आप जाके क्रिएट करो। तो मैं जैसे क्रिएट करूंगा तो उस पर्टिकुलर लेजर का 10 ट्रांजेक्शन होगा तो 10 पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो तो करना नहीं है, हमें तो पहले तो ट्रांजैक्शन को ही ठीक करना है। तो कंट्रोल स्पेस बार, मैं इसको भी डिलीट मार दूंगी क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैं मेरा 0 ही रखू ना, ताकि मेरा पूरा व्यवस्थित एवरीथिंग शुड कम। आर यू ऑन द सेम पेज? तो यहाँ पे जब भी वो वहां से कहीं से भी वो पेस्ट होके आता है ना, तभी उसको कुछ तो हैश मिला होगा। बून मेटल एंड अलॉयज कॉर्पोरेशन, लेट मी सी, ऑल्ट जी, मेरे पास लेजर वाउचर्स में बून मेटल है कि नहीं है। बून मेटल एंड अलॉयज कॉर्पोरेशन, इट इज देयर, इट एग्जिस्ट, ओके। देन टोडिनी मेटल शायद नहीं था मेरे पास, मैं देख लेता हूँ है कि नहीं। ऑल्ट जी, लेजर वाउचर्स, तो तोड़नी नहीं है तो वो हमें क्रिएट ही करना है। तो एक तो मैंने रखा था सैंपल, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हमको क्रिएट कैसे करना है, राइट। और समटाइम्स ऐसा होगा कि हमारे वहाँ देखो हर एक का होता है, लीगल नेम अलग होता है, ट्रेड नेम अलग होता है। लाइक वीएमपी इन्फोटेक होगा, प्रोप्राइटर प्रकाश धोड़िया है, तो टीडीएस में प्रकाश धोड़िया लिख के आएगा और हमने कंपनी का नाम खोल के रखा होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप ना एलआईएस में नाम रख दो एक का। लाइक आप वीएनपी इन्फोटेक को लेजर खोल के रखा है, तो अलायंस में आपको वो डिडक्टर का नाम डालना चाहिए, ताकि वो फैच कर सके टैली लेजर नेम या तो अलायंस, दो में से एक को पकड़ लेगा, ओके। सो दैट इज द सोल्यूशन। लेट अस ट्राई वंस अगेन, बराबर छे? आर यू विथ मी? अपन और एक बार ट्राई करें। हमने जो थोड़ा सा रिसर्च किया उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है। फिर से एक्सेप्शन आया, अभी देखो कम हो गया एक्सेप्शन। आर यू विथ मी? और फिर ये देखो मैंने जैसे बोला थोड़ा नहीं मुझे पता ही है, मुझे करना है, तो मैं यहाँ जाके सन्ड्री डेटर्स में जाके और उसका जो भी बाकी का इंफॉर्मेशन आपको भरना है भर सकते हो, कंट्रोल ए करके सेव कर लो। पन्ना बेन, अरविंद भाई कोठारी। तो एक बार वो सन्ड्री डेटर्स किया तो ये सब आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको बनाने का भी इजी हो जाता है, लेजर क्रिएट करना भी वो डेटर्स के अंदर ये एक साथ में सब हो गया, खत्म हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे वाउचर एक्सेप्शन किया और मेरा 20 वाउचर्स है कम। आर यू विथ मी? ओके। सो ये तो 20 था, वो तो 50 होगा, 100 होगा। एक बार तुम्हारा डेटा बेस हो गया तो एनीथिंग कैन बी डन एंड इम्पोर्टेड।
लेट्स नाउ, सो यहाँ तक का अंडरस्टैंड कर गया। अभी परचेस का थोड़ा दिखा देती हूँ। वो मैंने बनाया था टेम्पलेट GSTR 4 में से बनाया है स्पेसिफिकली, कि खाली किसी का हमको ट्रांजैक्शंस एंट्री करना है। तो परचेस टेम्पलेट मैंने, ये कंपनी अपना 10,003 मैंने ऑलरेडी शायद इधर खोल के रखा है। 10,003 परचेस टेम्पलेट डेमो, देखो मैंने नाम दिया है परचेस टेम्पलेट डेमो। उसमें हम जाएंगे स्टेटिस्टिक्स में और जाएंगे परचेस में। देखो अक्टूबर से दिसंबर कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन इज नॉट देयर। सो अभी मैं उसकी फाइल खोल के दिखाती हूँ। लेट्स क्लोज दिस फाइल, whichever we don't want, let's close this, yes। फिर ये भी मैंने, आई विल शेयर दिस फाइल, आपको चाहिए तो, क्योंकि ये तो अभी तो अवेलेबल। ये आप लोग जो बोले ना, मैंने भी खोला था आज, ये टैली का जो डिफॉल्ट है ना, आई जस्ट ओपन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आदमी क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं होता है, इट हार्डली गिव्स यू एनीथिंग। सो इसके थ्रू हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो इसमें वो हाँ, रेफरेंस नंबर भी जो आता है ना, तो जब अपने पेमेंट एडजस्ट करो तो अगेंस्ट रेफरेंस में न्यू रेफरेंस दिखाता ही नहीं है। हाँ वो मैं दिखा दूंगी अभी आपको कैसे करना है, न्यू रेफरेंस कैसे बनाना है, वो हम ये टेम्पलेट में सीखेंगे। अभी जो मैं टेम्पलेट बनाने बनाने वाली हूँ, आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करनी पड़ेगी। या तो इसमें वाउचर नंबर है ना, हाँ वाउचर नंबर है ना, वाउचर नंबर कैन बी योर परचेस नंबर सीरीज, ओके। एंड देन यू इंसर्ट, आपको यहाँ अलाउड है, यू कैन इंसर्ट द कॉलम। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नहीं लिख सकते, आप यहाँ लिख दो सप्लायर इनवॉइस नंबर, आप ऐसा कर सकते हो। Tally has not restricted you. Are you getting my point? आप जो आपका एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो उसमें आप जाके ऐसा इंसर्ट करके इसको वहां पे मैप कर दो। अब वहां नहीं जाते हुए मैंने क्या किया है, ये सैंपल GSTR 4 में देखो, ये GST की साइट से 4A आया है, ठीक है। उसमें हम ये क्लाइंट का जो ट्रेड नेम है उसको उठाया, और हमने इसमें कॉलम क्या बनाई, वाउचर टाइप परचेस, वाउचर नंबर या 42 मैंने वहां से देख के डाला है। पार्टी नेम में हमने इनका ये नाम डाल दिया है, ट्रेड लीगल नेम। उसके बाद हमने इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, IGST, यहाँ तक मैंने यहाँ से उठा उठा के कॉलम को पेस्ट कर दिया, ठीक है। इनका सब इंपोर्ट IGST से आता है, कंपोजिशन डीलर है, तो मुझे ना इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी है राइट नाउ। अच्छा, उसमें मैंने क्या किया, बाद में यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाली थी, आई विल जस्ट फॉर अ टाइमिंग बता देती हूँ। प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब हम काम करते हैं तो देखो, ये 6,400 माइनस दिस प्लस दिस, जनरली ऐसा होता है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज कहाँ जाएगा, तो वो उसके लिए फॉर्मूला बनाने के बाद हमने थोड़ा रिसर्च किया। कल कल से मैं इसी के ऊपर बैठी थी, तो मेरा राउंड ऑफ पहले नहीं आ रहा था। मेरे भाई ने बताया देखो फ्रेट चार्जेस में ये आप कॉलम बना दो, यहाँ डाल दीजिए। फिर राउंड ऑफ डेबिट मैंने यहाँ डाल दिया। क्रेडिट में ना यहाँ आपने फॉर्मूला सेट की ना, तो ये माइनस आता है। इस माइनस को पहले आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर अपने लिए लिख दिया राउंड ऑफ क्रेडिट करना है, समझे आप। और यहाँ पे जब आप फॉर्मूला डालते हो प्लस माइनस की, तो वो तो -0.25, तो वो -0.25 जब मैंने इंपोर्ट किया ना, तो टैली हैड अ सिग्नल के ये एक्सेप्शन है। तो फिर मेरे को समझा, तो हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। आर यू विथ मी? जिनको एक्सेल समझता है वो समझ जाएंगे कि इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, नहीं तो उसको नहीं समझेगा टैली को, क्योंकि उसके पास लॉजिक क्लियर है कि मुझे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो किसी ने मुझे लिख के भेजा है, मुझे वही करना है। तो जब मैंने उसको बोला क्रेडिट कर, और यहाँ -0.25 था, तो उसने उसको एक्सेप्शन में डाला था। एंड देन वी रियलाइज कि हमें थोड़ा सा डेटा, आपको टैली एक्सेल में थोड़ा क्लीन कर लोगे तो इम्पोर्ट तो 1 सेकंड में हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक को नीचे क्यों डाला, यहाँ से मैंने कट पेस्ट करके नीचे डाला। पहले तो आप क्या करोगे, पूरा पूरा ये उठा उठा के ही डाल दोगे। अच्छा, अभी हमें हमें एक्सिस बैंक नहीं चाहिए, क्योंकि हम सीधा ये B2B हम हमारा बैंक चार्जेस के थ्रू डेबिट हो जाता है। सो आई डोंट वांट टू बुक दिस एक्सिस और यूनियन। तो ये खास मैंने नीचे क्यों डाला, तुम्हें सिखाने के लिए कि मुझे 18 रो तक का ही डेटा चाहिए। मुझे वो डिलीट नहीं करनी है एंट्रीज मेरे ये टैबलेट से, बट रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बट आई एम नॉट इम्पोर्टिंग, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जब आप टेम्पलेट में इंपोर्ट करते हो, अब हम करेंगे Alt O, मैनेज। जो मैंने टेम्पलेट बनाया है, तो मैं उसको अल्टर करूंगी, उसका नाम मैंने दिया है BB अकाउंटिंग परचेज। और अब मुझे फिर से स्पेसिफाई पाथ करना पड़ेगा, क्योंकि माई फाइल इज चेंजिंग नाउ, दैट इज परचेज फाइल।
सो परचेज फाइल इज इन द परचेज टेम्पलेट फोल्डर। सो कंट्रोल सी करके आप यहाँ पे पाथ डिफाइन कीजिए, वो यहाँ आपको बताएगा कि आपको कौन सी फाइल में करना है। तो मेरे को ये फाइल में करना है ना, सैंपल GSTR4, ये वाला मेरा फाइल है। क्या फाइल है, फाइल का नाम भी मैं भी भूल गया। सैंपल परचेज जो मैंने बनाई है, इसका नाम है सैंपल परचेज अक्टूबर टू दिसंबर 24। सो दिस वे यू कैन चेक कि मेरे को कौन सा करना है परचेज। वो GSTR4 मतलब वो 4A डाउनलोड वाला फाइल था। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा रिसर्च करके तुम्हारे लिए रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे देखो कॉलम एज अ कॉलम हेडर यस करना है। नाम आप यहाँ पे जो डालना है आप डाल सकते हो, दैट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड किस क्लाइंट का कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे फिर से मैंने बताया नंबर 2 से 18 तक हम ले सकते हैं, और A to लास्ट कॉलम या A to Z को इंपोर्ट करना है तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। वाउचर टाइप वंदना जी, नेम का बहुत रेलेवेंस है क्या? इसमें कोई खास रेलेवेंस नहीं है? नहीं है, रेलेवेंस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी इतने सारे टेम्पलेट में से कौन सा टेम्पलेट उठाना है वो अपने स्टाफ को कैसे समझेगा। तो समझा। स्टाफ स्टाफ के लिए मतलब इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना, एनीथिंग व्हेन यू डू ना, अपने पीछे कोई बैठेगा उसको समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा टेम्पलेट में काम करना है, उसको कैसे समझेगा। सो लेट्स गो टू BB, कुछ भी वो तो नाम है आपका, जो आपको फेवरेट लगे वो करो भाई। अकाउंटिंग वाउचर, वाउचर टाइप नेम। अभी देखो मैं फिर से स्पेस बार मारता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे वो स्क्रीन पे लेके आता है कि आपको आपको ऑप्शन है, आप स्पेसिफाई कॉलम भी कर सकते हो, मैं ए भी लिख सकता हूँ, बट जनरली आई राइट दिस सो दैट आई रिमेम्बर व्हाट आई हैव पिक्ड अप। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हेडर ही लिखना है, वो तो कॉलम एक्सेल भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, एक्सेल का कौन सा कॉलम में से डेटा पिकअप करना है उसको। ओके, वाउचर डेट इज इनवॉइस। जो इनका क्वेश्चन था ना, वो आपको यहाँ पे देखो टॉप लेजर्स के बाद, लेजर अमाउंट के बाद आपको ना जाके हाथ से बिल टाइप ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ बिल एलोकेशन में जाके बिल टाइप ऑफ रेफरेंस, देन स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू, ये न्यू आपको हाथ से टाइप करना है। यू हैव टू की विथ योर हेड। देन बिल नेम अगेन इट विल बी इनवॉइस नंबर। इफ आई वांट टू टेक दिस रेफरेंस नंबर इज माय इनवॉइस नंबर। ओके, और यहाँ पे भी मैंने ऊपर क्यों डाला रेफरेंस नंबर, क्योंकि वो परचेज वाउचर में ऊपर फिर नहीं आ रहा था, नीचे रेफरेंस आ गया अगेंस्ट अलोकेशन में, बट अपना वाउचर में ऊपर भी चाहिए ना सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो वहां पे डालने के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करके इनवॉइस नंबर डालना है। ओके, सो एक एक चीज रेफरेंस डेट उसका एक एक इंपॉर्टेंट है कि वो फील्ड को भरने के लिए आपको पर्टिकुलर आइटम को पिक करना है। सो वाउचर नरेशन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मैं तो एज पर GSTR4 ये परचेज की एंट्री की है, तो मैंने हाथ से टाइप किया है। फिक्स वैल्यू मीन्स यू कैन, फिर लेजर नेम, ये जो स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू GST का OMS परचेज ही है, तो ये कैसे आता है, तो आपको यहाँ से जो हमारे लेजर से वहां से उठा रहे हैं। ओके, फिर लेजर अमाउंट क्या जाएगा, तो टैक्सेबल वैल्यू जाएगा, वो तो जो GSTR4 से उठाया वही हेडिंग हमने कंटिन्यू किया, ऑब्वियसली मेरा ये डेबिट हो जाएगा। उसके बाद मेरा टॉप लेजर्स पार्टी, पार्टी का नाम, तो पार्टी नेम ले लिया, लेजर अमाउंट इनवॉइस वैल्यू ले लिया, लेजर अमाउंट स्पेसिफाई, वो पार्टी पूरी क्रेडिट हो जाएगी। फिर बिल टाइप न्यू हाथ से डाला, बिल नेम, इनवॉइस नंबर को पिक किया, इनवॉइस वैल्यू को पिक किया। फिर नीचे भी बिल अमाउंट विल बी डेबिट और क्रेडिट, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू आपको क्रेडिट कर रहा है क्योंकि इट्स अ क्रेडिटर, परचेज की एंट्री कर रहे हैं। फिर बॉटम लेजर में ये बहुत मैंने आज सीखा, जितना आपको अलग अलग बाइफरकेट करना है ना, लाइक IGST, फ्रेट, जो भी करना है, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, वो सब बॉटम लेजर ऐसा स्पेसिफाई करके डालना। यहाँ पे ये IGST का लेजर मैंने पिक किया है फ्रॉम द, आपका CGST तो आप CGST करोगे वैसे। लेजर अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट IGST यहाँ से मैं कॉलम को पिक कर रही हूँ। ठीक है, फिर वो क्या है, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, आई हैव टू डेबिट, इट इज माय इनपुट क्रेडिट, वैसे ये कंपोजिशन है उसको वो नहीं है बट इट इज माय डेबिट, तो मैंने वहाँ IGST। फिर अगेन बॉटम लेजर, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, यहाँ पे हमने फ्रेट चार्जेस इनवर्ड नॉन GST, मतलब उसपे GST लग के नहीं आ रहा है उसको। फिर लेजर अमाउंट, अब ये कॉलम से उठा रहा हूँ, तो मैंने नाम आइडेंटिकल रखे तो मुझे समझ में आता है कि मैं वहां से ही वो फिगर उठा रही हूँ इसके लिए। फिर लेजर अमाउंट, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, डेबिट हो गया मेरा। बॉटम लेजर अगेन, यहाँ पे मेरा राउंडिंग ऑफ का चैलेंज था, तो भाई ने सॉर्ट आउट किया, राउंडिंग ऑफ हमने 2 बना दिया। कल तो फिर हमने मैन्युअली किया था, पर 10-15 ट्रांजैक्शन है तो मैन्युअली करोगे, 100,000 ट्रांजैक्शन में मैन्युअल कौन करेगा। सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा एक्सेल में आप काम कर लो और फिर आप स्पेसिफाई कर लो। आई होप
कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम मैपिंग इट, और क्रेडिट करके हमने ये एंड ऑफ लिस्ट किया, ये हमने सेव कर लिया, ये ओके कर लिया। परचेज यहाँ पे कुछ है नहीं, भगवान का नाम लो और अभी इसको इंपोर्ट करो। अभी यहाँ 18 तक का मुझे लाना है, जिसका नाम नहीं होगा, माई बाप नहीं होगा, तो इंपोर्ट नहीं होगा शायद, लेजर। तो अभी इसमें है हार्डली 5 ट्रांजेक्शन। मलई है, सुधाबेन चंद्रकांत गणात्रा है कि नहीं, मैं जरा देख लेता हूँ एक बार। ऑल्ट जी, लेजर वाउचर्स, सुधाबेन तो है, सुधाबेन का, लेकिन नाम है वल्लभ आर्ट्स। एक्चुअली वो दैट इज द, मैंने बोला था, मैंने ऑलरेडी उसको अलायंस में डाल दिया है। चलिए, अब ये फाइल ओपन में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज करना कोई मैंडेटरी नहीं है। सैंपल परचेज अक्टूबर टू दिसंबर, शीट 1, निधि अकाउंटिंग परचेज एंड डन। और हमारे पास 17 आइटम है, तो उसको इंपोर्ट करेंगे एंड इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जो मैंने पूरा करके रखा था, इसलिए बहुत निकल गया। अभी आप देखना चाहोगे तो कैसे आएगा, तो ये 3 वो 0 है तो वो खाली लेके आएगा, लेकिन आपका काम हो गया कि परचेज आ गया। पेज डाउन, ये देखो, ये 0.25 माइनस में लेके गया। इंपोर्टेड सक्सेसफुली, नो एक्सेप्शन। मैंने रिमूव किया बैठ के एक्सेप्शन, पहले वो 0.25 वाले 3 आइटम जो थे नेगेटिव, वो एक्सेप्शन में जा रहे थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में उसकी इफेक्ट नहीं आएगी, खाली एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आईजीएसटी 300 आ गया और 100 मेरा फ्रेट चार्जेस भी लेके आ गया, मस्त है। गॉट इट। आप इसको फिर यहाँ पे चेंज व्यू में जाके ऐसा एक्सट्रैक्ट में देख सकते हो कि प्रॉपरली सब आ गया कि नहीं। ये आपका हो गया 350 आपका फ्रेट, जीएसटी एमएस परचेस, डन डील। ठीक है, चले डैशबोर्ड पे। और सुनो, शेयर बाजार का तो क्या है, उसका पूरा टीडीएल और वो सब आता है, 20-25 हजार में बना हुआ ही है, उनसे लेके वो इम्प्लीमेंट कर देने का। इसमें करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि देन इट इज अगेन अ मैनुअल थिंग ऑन इट। दैट इज माय एडवाइस। सुमित सर, यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है? मतलब मैम मेरे देखो, को तो नहीं है, बट इन केस एनीवन हाँ हैज हाँ, प्लीज सर राइट ऑन दी चैट और वो बाद अनम्यूट में एंड आस्क। व्हाट्सएप, हाँ बाद में व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं कभी भी। व्हाट्सएप नहीं मैम, एक बार ही पूछ लेते हैं, इन केस समबडी वांट्स टू आस्क प्लीज नहीं नहीं, अनम्यूट एंड आज आस्क। अभी देखो, अभी 10 मिनट में मेरे को थोड़ा सा एक एमआईएस, थोड़ा सा जर्नल, मैंने बोला आप लॉजिक को क्लियर कर लो, आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया ना, तो स्काई इज द लिमिट। जैसे जैसे जो जो मैप करना है ना, वही लेके। इन्वेंट्री में भी आप इन्वेंट्री भी मैप कर सकते हो, उसका भी मैं एक बार खाली टेम्पलेट खोल के बता देता हूँ, मैंने शायद इन्वेंट्री का भी किया है, अभी लाइव दिखाऊंगी नहीं, बट थोड़ा सा नजर घुमाना है तो मैंने लिखा है विथ इन्वेंट्री कहीं पे। मैंने उसका बीबी अकाउंटिंग पर्पस कंपनी क्रेडिट कार्ड, और ये उनका ना सेल्स जब आता था बीजी में से, तो अलग अलग 3 लेके आता है, कैश लेके आएगा, क्रेडिट कार्ड लेके आएगा, जीपे लेके आएगा। तो फिर मैंने 3 टाइप की रिसीट बना दी अलग से, और उसको कार्ड रिसीट, कैश सेल्स, मतलब तो मेरा वो सब सेपरेट आउट कर दिया, एंड देन आई कुड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। और मैंने सेल्स पूरा एक डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डाल दिया। तो थोड़ा सा R&D करोगे ना, तो हर चीज का काम हो सकता है ऐसा। अब फाइल के बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एग्जैक्ट फाइल चाहिए। चलिए, तो वो फिर लेटर ऑन करेंगे। जो मुझे आज दिखाना था, टीडीएस और परचेस, 2 टैबलेट मैंने आपको बता दिए। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड, नेशनल एंटरप्राइज डैशबोर्ड में डेटा है 1-4। युगल जी is asking BB voucher invoice. युगल जी if you can please unmute and ask. एंड एग्जैक्ट। नरेंद्र कुमार जी का बहुत 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पहले उन्होंने शेयर का बोला था और लेटर टीडीएल का बोला था। हम्म, So in case you are able to take care मेरे in this पास है। session, or elsewise you can connect one हाँ, to one हाँ probably. मैं उनको बोला ना कि मेरे पास है, टीडीएल रेडी है, वो करा के दे देंगे आपको, उसका स्ट्रेस नहीं है। वो तो डेमो भी दे देंगे कि ऐसा ऐसा दिखेगा आपको सब। Pushpa ji, if you can please unmute and ask, else we'll move forward because हाँ, मुझे क्या, GSTN से नहीं मतलब if you can please unmute and ask the entire question, that would be great. अच्छा उनको क्या क्वेश्चन होगा मुझे समझा। ठीक है वंदना जी, let's move forward I think. हाँ, उनको ना कॉलमिनर में जीएसटी का एक इश्यू होगा। ये देखो, ये वल्लभ का ही जीएसटी का इश्यू है, बाकी सबका ही जीएसटी आ गया है। मैंने देखा था, मैं भी आज काम कर रही थी ना, तब मैंने देखा था इसका नहीं आ रहा है।
कुछ तो स्ट्रेस है, बाकी तो मोस्टली जो क्लाइंट का जब भी आपने खोला रहेगा ना तो वो आ ही जाता है। यहाँ पे ना जैसे ही गुजरात करेंगे और वो मुझे लाके पेस्ट करना पड़ेगा जीएसटी, फिर मैंने 4A से लाके पेस्ट कर दिया। तो दिस वाज द चैलेंज, वन चैलेंज वाज देयर। ओके, बाकी सबका वो लेके आ रहा है। और नहीं तो अभी जीएसटी से आप लेजर क्रिएशन तो अभी बहुत आसान हो गया है। बहुत बहुत मतलब आपको क्रिएट करना है कभी भी कोई लेजर, आप लेजर पे चले जाइए, यहाँ पे फैच जीएसटी करिए और जस्ट डाल दीजिए कोई भी जीएसटी नंबर, अपने वाउचर उसमें मिलेगा ना अपने को, परचेज टेम्पलेट में कोई भी एक अभी अगर आपको डालना है, Ctrl V एंटर, तो सीधा लेके आ जाता है। एंड देन आप यहाँ पे फाइलिंग हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जितना है आपको मिलेगा, कभी खोला है कभी क्या है, दिसंबर 24 का 17 जनवरी तक भरा है उसमें। सो क्वार्टरली रहेगा। एंड अपडेट एज पर पोर्टल जब करने जाओगे, Ctrl A, और अभी यहाँ पे मैंने Ctrl A किया, हाँ, और ये मैंने यहाँ पे वो पूरा आप सेव करना है कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये क्लाइंट ऑलरेडी है, नहीं तो वो डुप्लीकेट बोलेगा ही वैसे टेक्निकली। ठीक है, तो छोड़ा है उधर एक्चुअली। ठीक है, सो आपने देखा ना मैंने इधर नीचे डाल दिया है। सो दिस इज हाउ यू शुड ट्रैक, जिसका नाम अलग रहता है, मतलब प्रोप्राइटर अलग रहता है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा खुद को वो करना पड़ेगा। ठीक है, इजी। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में, जाने के लिए हमने कंपनी चेंज करनी है, ये वाली नेशनल एंटरप्राइज डैशबोर्ड, और यहाँ पे 22-23 में डैशबोर्ड में मैं जा रही हूँ। डैशबोर्ड जो ना एक होता है इनबिल्ट आता है टैली के अंदर, सेल्स ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, फिर आप आपके हिसाब से क्लाइंट को एमआईएस का एक असाइनमेंट लेके नया नया एड टाइल्स खुद कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। समझो कि मुझे उसको टॉप स्टॉक ग्रुप्स चाहिए तो मैं ऐड कर सकती हूँ, और उसमें भी कोई पर्टिकुलर लेना है, या जो टॉप स्टॉक ग्रुप है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया वैसे। और वो पूरा जो स्क्रीन दिखता है आपको, उसका एक साथ में हर टाइल का पीरियड चेंज करना है तो यहाँ ऑल टाइल्स का आप चेंज कर सकते हो। दिस इज हाउ इट शुड बी अंडरस्टूड। देन ट्रेडिंग में जाके अगर मुझे इसके अंदर एंटर किया तो सीधा मेरे को अंदर लेके जाएगा, और अगर उसको मुझे कॉन्फ़िगर टाइल करना है, आई क्लिक ऑन अ कॉन्फ़िगर टाइल, देन आई वांट टू ऐड सर्टेन थिंग्स, परचेज है, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस भी चाहिए वहां पे, मुझे एक इनडायरेक्ट इनकम भी चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी चाहिए, तो वो सब आप कॉन्फ़िगर टाइल्स में जाके कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन रहेगी तो वो डिस्क्लोज करेगी, दैट इज। एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन डैशबोर्ड एंड देन दैट कैन बी सेव्ड, और यहाँ से बड़ा भी करके देख सकते हो। और ये जो भी जिनको जो जो देखना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी सर्टन जीएसटी डैशबोर्ड बनाया है, जीएसटी में GSTR 1 पेंडिंग, उसको ही पकड़ के आप ले लो, GSTR 3 भी पेंडिंग, GSTR 1 रिकंसिलेशन पेंडिंग। तो जैसे ही क्लाइंट का डेटा आता है आप खाली जीएसटी का डैशबोर्ड देखोगे तो उसको इमीडिएटली बोल सकते हो कि बाबा ये तेरा करेक्शन करा ले, ये पेंडिंग है, उसको तू करके दे दे। फिर था ऑल्ट जी, एक सीए डैशबोर्ड था अलग से। तो ये डैशबोर्ड ना पोर्टेबल है, हम आपको फाइल टीएल से फाइल भेज सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। तो ये सीए के लिए बनाया है अलग से, उसको जो देखना है क्लाइंट का, टॉप 10 डायरेक्ट एक्सपेंस, कैश बैलेंस, वेरिएंस ट्रेंड। सो जो जो हमें, और यहाँ से नीचे भी आप जा सकते हो ऐसा। और ये अभी लाइन चार्ट है तो मैं बार चार्ट भी बना सकता हूँ, तो दैट इज अप टू यू। वो एडिट में जाके, वो कॉन्फ़िगर टाइल में जाके, अब यहाँ ग्राफ ओनली है, उसकी जगह पे डाटा एंड ग्राफ कर सकते हैं, लाइन की जगह पे बार कर सकते हैं, और उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो टाइल की, वो भी लिखा है 11/12 वैसे। और ये था डिफॉल्ट में है 1000, 100, जो भी करना है वो फिगर्स आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये नेट ट्रांजैक्शन मुझे ऐसा नहीं देखना है, आई वॉन्ट इट टू बी सीन इन
only say lakhs, so I can write lakhs. So यहाँ पे particulars में ये lakhs में लिख के आया, figure in lakhs लिख के आ जाता है नीचे. This is how you can present, and this is fully export, ये export हो जाता है फिर PDF में export करके दे सकते हो management. So I think with limited time આપણે જેટલું કરી શકીએ, how much I can, and it is the ocean, the sky is the limit for learning, you know. अभी तो AI में हम लोग काम कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को बोलोगे तो वो कुछ अपने लिए TDL लिख के भी देगा, लेकिन देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम खुद का दिमाग चलाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा. दैट इज माय एडवाइस. सुमित, आई होप विद द लिमिटेड टाइम वी कुड डू द जस्टिस टू द टॉपिक. और मैं बोलती हूँ टेम्पलेट खुद का एक्सेल शीट का आप मैपिंग करके टेम्पलेट को यूज कीजिए. ठीक है. यस मैडम. एक इन केस जस्ट 1-2 मिनट अगर आप हाँ ऑडिट वाला बता. जो फंक्शन है, कौन सा वाला ऑडिट का? ऑडिटर का एक लॉग है ना जिसमें कौन कौन से वाउचर चेक हुए, वैसा कुछ आप बता हाँ पाएंगे क्या फटाक देखो, से एक बार? उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी लेवल में ऑल्टर में ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स यस होना चाहिए. ओके. ओके. वंस आई डू यस, देन ओनली दैट फीचर विल गेट. तो मैं बताना चाहती हूँ कि यस नहीं है तो क्या. ओके. तो हमने अभी अभी गए थे अंदर, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट में जाएंगे. अब देखो टैली ऑडिट इज नॉट हाईलाइटेड. करेक्ट. So if I go to another company where I have already activated, so probably in this it is highlighted. Can you see it? क्योंकि उसमें ऑलरेडी है, तो फिर वहां पे आपको यूजर्स, आपका 2 यूजर्स है, किसने क्या काम किया है, 157 एंट्री, 33 एंट्रीज, वैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो और इनमें एक कोई एंट्री अगर ऑडिट मतलब चेंज हो जाता है तो फिर ये 33 से 32 हो जाएगा, राइट मैम? नॉट दैट वे. वो खाली किसने किया, हाँ मतलब एंटर्ड अल्टर्ड में चला जाएगा फिर वो. करेक्ट. करेक्ट. वही पूछ रहा था आपसे. थैंक यू सो मच मैम. इन केस एनीवन हैज क्वेश्चंस. तो मैंने ये भी बताया कि वो एक्टिवेटेड नहीं रहेगा तो दिखेगा ही नहीं आपको. करेक्ट, समझ गया. दैट इज इम्पोर्टेंट. वन हैव टू अंडरस्टैंड दैट गेट्स एनेबल्ड. और पूरा चाहिए ना, तो अपना ऑडिट तो यहाँ पे है ही अपने लिए, उन्होंने बना के दिया है फर्स्ट पेज पे, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन. प्लीज यूज दिस मॉड्यूल फॉर डूइंग ऑडिट. सीधा पूरा वो देता है फिल्टर आपको. मेरी ये हमेशा मैसेज रहता है, प्लीज यूज दिस एनालिटिकल प्रोसीजर. तो यहाँ पे तो आप सेल्स लो और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लो, एक बार वो पीरियड डालो, फिर कुछ अंदर डेटा रहेगा तो आपको दिखाई देगा. वैसे सपोज के आई गो टू नेशनल एंटरप्राइज एंड आई वांट टू एनालिसिस पीरियड चेंज करेंगे. यहाँ पे पीरियड चेंज कर दीजिए आप 2023. और अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर में जाते हैं, 4/22 की आई डोंट रिकलेक्ट उसमें कौन से उसमें डेटा है. हाँ तो इसमें आया 22-23 में आया ना, तो 23-24 में होगा. तो डेटा जिसमें है उस हिसाब से आपको वो दिखाई देगा. मैम ये एक बार फिर से दिखाई ना, सो दिस विल जो हम लोग वेरिएंस एनालिसिस करते हैं इससे हो जाएगा, राइट? हाँ वो, और ये तो आप मंथली इंटरनल ऑडिट में काम में आएगा, आपका क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट में भी काम में आएगा. मतलब दिस आर समथिंग वेरी फिनोमिनल. वो जो तुमको मैं बता रही थी ना, एक मिनट को, परचेस ऑल्ट F1. यस, ये मैं इसको बंद कर देती हूँ तो वो जो लड़ने का बंद कर. सर्टेन थिंग्स आई डोंट वांट, तो मुझे परेशान नहीं करेगा. वो बोलेगा सिंगल सिंगल क्यों करेगा, क्योंकि मैं जैसे ही ऑन करूंगी ना, मेरी लोड कंपनीज है ना, तो सब लोड होके आ जाती है. ठीक है. अभी आपके पास ये नेशनल एंटरप्राइज जो है, उसमें हम ऑल्ट F3 करेंगे. और पहले समझना पड़ता है जब भी आप काम चालू करते हो, तो मुझे आपको डैशबोर्ड दिखाना था ना, तो 10,000. Why I again I'm coming
स्पेसिफाइड पार्ट, मुझे यहाँ पे 22 से 24 ऐसा लिखा है ना, वो समझना था। डेटा इज फॉर द पीरियड। सो अगर आप समझ लो कि अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर में बैठ के बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे हैं और आपको कंपेरेटिव एनालिसिस देखना है, 2 साल का स्क्रीन टैली का करंट पीरियड 2 साल का ले लीजिए और फिर आप जाइए बैलेंस शीट में या फॉर दैट मैटर प्रॉफिट एंड लॉस और यूज कीजिए ऑल्ट एन बटन। ऑल्ट एन बटन के बाद आपको देखो कंपनी वाइज भी मिलेगा, ईयर वाइज भी मिलेगा, जैसे आपको चाहिए इंफॉर्मेशन मिलेगा। सपोज मैं ऐसा करके ईयरली ले लेती हूँ, आप देख लीजिए, तो मुझे वो टाइप नहीं करना पड़ता पीरियड। आई कैन सेव ऑन माई टाइम। आई गेटिंग माई पॉइंट? Great. Thank अभी you जब so आप ऑडिट करोगे ऐसे करो। फिर जब आपका फाइनल हो जाता है प्रिंट और आपको लैक्स में एक्सपोर्ट करना है, तो बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके यहाँ पे आपको स्केल फैक्टर को चेंज कर देना है, लैक्स, कंट्रोल है, और इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दीजिए। सिंपल। simple. Thank you so much, ma'am, for making it simple. एक्चुअली सो मच, मतलब मेरे को तो टाइम ही कम पड़ता है जब भी मैं सेशन लेती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पास तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस में आप जितना टैली को अपने लिए यूज करोगे तो सेव ऑन टाइम होता है। और दूसरा, मैंने जैसे अभी नया जो आया है, मैंने अभी एक्चुअली बंद किया ना, बैंक रिकंसिलिएशन में भी आप समझो आप इंपोर्ट करोगे स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट जब इंपोर्ट करोगे ना, तो एक ही खाते में डालना, लाइक नरेशन कंटेनिंग बैंक चार्जेस। तो नाउ बल्क पोस्टिंग विथ वन लेजर इज पॉसिबल इन टैली 6.0। दैट्स अ न्यू फीचर। हम रखेंगे टैली 6.0 का एक सेशन ही रखेंगे अलग से, ठीक है ना? Okay, madam. हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर So, क्वेश्चन। ऐसा in बोलिए। case we don't have questions, then I, on behalf of VIPCA, take an opportunity to thank Vandana ji for sparing her time and sharing her knowledge. She made the entire session very easy. मेरे को तो पता ही नहीं चला कि कैसे 1 घंटे खत्म हो गए। और लास्ट में जो वेरिएंस वाला था, ये तो मैम मेरे को खुद को भी पता नहीं था कि ये फैसिलिटी है, सो वी कैन प्रॉब्ली यूज दिस in our day-to-day life. So thank you so much, and I hope that we will even request your future deliberations and you will give us time. So with this note, I thank लड़ने के ma'am. लिए कभी भी अवेलेबल है। Thank you so much, ma'am. Even आप अगर मैसेज भी पढ़ेंगे तो बहुत there are people thanking you for the entire deliberation. अच्छा, So ग्रेट। thank you so much for sparing your time and giving us these knowledge. So with this, I think we can, end the call. Uh, यस सर, एज यू प्लीज। in case anyone wants to, please, and all our recordings would be uploaded on our YouTube channel. So this is the last session of Tech Friday Series 1. In case we find available or based on the requirements, we can even launch session 2. And apart from this, we plan to do a session which is related to tools, through which, because ultimately tools are very important, so tools के बिना बहुत ज़्यादा चीजें अचीव नहीं हो पाती है. So let's hope that we'll try and make one session or 3-4 sessions related to tool which can help during our audit season. परफेक्ट। And thank you all for joining this meeting and making it a grand success. Our peak was at 55 and still we are at 35, which is a great number because being a Friday. And thank you, Vandana ji, once again for sparing time and sharing your knowledge. With this note, I'll conclude the meeting and thank you all for joining. We'll look forward for having you in our meetings in future time. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय।